میرا نام پاسٹر اشتیاق ایس ناصر ہے۔ میرا تعلق فیلڈلفیا پینٹیکاسٹل چرچ آف پاکستان سے ہے۔ میں فیلڈلفیا پینٹیکاسٹل چرچ ضیاء کالونی کراچی میں خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ میں محترم پاسٹر دانش پیٹر صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں گریس نیٹ ورک میں آ کر خداوند کا پاک اور پروکار کلام پیش کروں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خدا باپ تیرے شکر گزار ہیں، تو یہاں پر موجود ہے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیرے پاک اور بے عیب کلام کے لیے، جس میں خداوند تو نے ہمارے لیے برکات رکھی ہیں۔ آج جتنی زندگیاں بھی اس پاک کلام کو سنیں، برکات حاصل کریں، پاک روح سے لبریز ہو جائیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ جب تک کلام ہو، تیرے پاک روح کا مسا ہو، تیرے پاک روح کا ٹھہراؤ ہو اور تجھے عزت اور جلال ملے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو کثرت کی برکت دینا، مسیح خدا کے وسیلہ سے چاہتے اور مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزو، آج کا میرا موضوع ہے جسمانی اور روحانی شخصیات میں فرق۔ رومیوں 8 باب اس کی 5 سے 9 آیات میں لکھا ہے، کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہو۔ خداوند کے پاک اور پروکار کلام پر اس کی برکت ہو۔ خداوند کے کلام میں سے ہم 5ویں آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے، کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ جسمانی یعنی مادی چیزیں جو فنا ہو جائیں گی، لہٰذا جسمانی چیزوں سے دور رہیں، وہ آپ کو موت کے منہ میں لے جائیں گی۔ کلام پاک میں ہمیں بہت ساری ایسی شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو جسمانی ثابت کیا ہے، یعنی کہ وہ مادی چیزوں کے پیچھے بھاگے، وہ فانی چیزوں کے پیچھے بھاگے، وہ عارضی چیزوں کے پیچھے بھاگے، مگر انہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ ان میں ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں، پیدائش 2 باب اس کی 1 سے 8 آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ قائن خدا سے دور تھا، لہٰذا قائن کو معلوم نہ تھا کہ خدا کو ہدیے میں کیا پیش کرنا ہے۔ قائن نے خدا کی مرضی کے مطابق ہدیہ نہ دیا، نہ وہ جانتا تھا کہ خدا کو کون سا ہدیہ دوں۔ اس کی نظریں خدا پر نہیں بلکہ اپنی مرضی سے ہدیہ دینے پر لگی ہوئی تھی۔ قائن نے اپنی غلطی کو تسلیم نہ کیا۔ اور جب ہم خداوند کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں تو پیدائش 4 باب اس کی 2 سے 8 آیات میں یوں لکھا ہے، پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا، اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹھے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا۔ اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ اور خدا نے قائن سے کہا، تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے، اور تیرا مشتاق ہے
पर तू उस पर गालिब आ। यहाँ पर हम देखते हैं कि काइन ने वो रास्ता इख्तियार किया जो खुदावंद की मर्जी के खिलाफ था, और काइन क्योंकि ईमान से खाली था, बरकतों से खाली था, और उसने आदम की सिखाई हुई तरबियत को कबूल नहीं किया, पसंद नहीं किया, लिहाजा वो ये बात नहीं समझता था कि मुझे कौन सा हदिया देना है। अगर वो खुदावंद के साथ राब्ते में होता, अगर वो खुदाए कदूस के साथ ताल्लुक़ रखता, तो उसे मालूम होता कि मुझे कौन सा हदिया देना है। उसने अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से, अपने तरीके से उसने हदिया दिया, और उसने खेत के फलों का हदिया दिया जिसे खुदावंद ने नापसंद किया, जिसे खुदावंद ने मंजूर नहीं किया, जिसे खुदावंद ने कबूल नहीं फरमाया। लिहाजा अजीज़ों, हम देखते हैं कि ये एक जिस्मानी शख्स है जो खुदा के रूह से, खुदा की बरकतों से, खुदा के कलाम से ना वाकिफ़ है। क्योंकि आदम ज़रूर ये चाहता था कि उसके बेटे खुदावंद के करीब रहें, उसकी नज़दीकी हासिल करें, मगर काइन को खुदावंद का कलाम सुनना, खुदा की तरबियत को सुनना पसंद नहीं था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब उसने देखा कि मेरे भाई आबल का हदिया कबूल किया गया है, पसंद फरमाया गया है, खुदावंद ने उसे कबूल कर लिया है, तो कलाम फरमाता है ये काइन गज़बनाक हुआ, उसका मुंह बिगड़ा, वो इंतकाम से भर गया। उसके अंदर से ये बात जाती रही कि हाबिल मेरा सगा भाई है, हाबिल मेरे माँ बाप का है, और हम दोनों एक ही की नस्ल और औलाद हैं। उसने ये सारी बातें रद्द कर दी और उसका मुंह बिगड़ गया, वो गुस्से से भर गया, वो बुरी सोच से भर गया, वो इंतकामी ज़हन से भर गया। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद ने फिर भी उससे कलाम किया, खुदावंद ने फिर भी उससे मोहब्बत की, और खुदा ने फरमाया अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा। खुदा ने कहा कि आए काइन, अगर तू भला करे तो मकबूल होगा, लेकिन काइन ने भला नहीं किया। खुदा कदूस ने काइन से कहा तूने भला नहीं किया, तूने अच्छा नहीं किया, मगर खुदा की बातें उसके ज़हन में नहीं बैठी, उसने खुदावंद की बातों को मौका नहीं दिया, उसने खुदावंद के कलाम को मौका नहीं दिया, उसने खुदा ने जो उससे डायरेक्ट बात की, जो उसके साथ बराह रास्त गुफ्तगू की, उसे रद्द कर दिया, उसे छोड़ दिया। और कलाम पाक ये बयान फरमाता है कि उसने अपने भाई काइन पर हमला किया, और अपने भाई पर हमला करके उसे कत्ल कर डाला। ये एक जिस्मानी इंसान है, ये एक जिस्मानी सोच रखने वाला इंसान है जो अपने रिश्तों को भूल गया है, जो अपने भाई को भूल गया है, अपने माँ बाप को भूल गया है, और वो एक ही सोच रखता है कि मैं पहले नंबर पर क्यों नहीं हूँ, मेरा पहला दर्जा क्यों नहीं है, मेरे भाई को खुदा ने क्यों कबूल कर लिया और मुझे रद्द कर दिया है। आज बेशुमार लोग हैं, आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने ईमान पर, अपने किरदार पर, अपनी ज़िंदगी पर, अपनी सीरत पर कभी भी सोचते नहीं है। ये सोचने का मुकाम है। अगर काइन सोचता कि मैं तो गलत हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, तो वो कभी भी अपने भाई को कत्ल ना करता।
आज हम इस बात पर गौर कर लें, इस बात को सोचें कि हमें कायन नहीं बनना, हमें जिस्मानी इंसान नहीं बनना, हमें मादी शख्स नहीं बनना, और हमें ये भी नहीं सोचना कि अगर हमारे भाई को, हमारी बहन को, हमारे अजीज़ को कोई बरकत मिलती है तो हम उससे नफ़रत करें। हम इन चीज़ों को रद्द करें क्योंकि ये खुदावन से दूर ले जाती हैं। और फिर हम खुदावन के पाक कलाम में से देखते हैं एक और शख्सियत के बारे में। मत्ती रसूल की अंजील 26वां बाब 14 से 16 आयत पर हम गौर करें तो यहाँ पर एक शख्स यहूदा अस्करियोती है। उसने भी दुनिया में रहकर जिस्मानी यानी मादी चीज़ों को पसंद किया, और खुदावन का कलाम फरमाता है मत्ती रसूल की अंजील 26वां बाब 14 से 16 आयत मुबारका में लिखा है, उस वक्त उन 12 में से एक ने, जिसका नाम यहूदा अस्करियोती था, सरदार काहनों के पास जाकर कहा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाला कर दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 रुपए तोल कर दे दिए, और वो उस वक्त से उसके पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। यहूदा अस्करियोती एक मादी शख्स था। उसने खुदावन से ज़्यादा रुपए को तरजीह दी, और उसने 30 रुपए हासिल करने के लिए खुदावन यीशु मसीह नासरी को, आकाए हक को, ज़िंदगी बख्शने वाले खुदावन को, गुनाहों को मुआफ़ करने वाले खुदावन को गिरफ्तार करवा दिया। अजीज़ों, अगर आप जिस्मानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर आप खुदा से अलग होकर रह रहे हैं, अगर आप खुदा से जुदा हैं, तो लानत और मौत और बुराइयां आपकी ज़िंदगी में जन्म लेंगी। इसलिए अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपने आप पर गौर करें। क्या आप पैसे के लालची तो नहीं? क्या आप खुदावन को रद्द तो नहीं करते? क्या आप कलाम को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे? क्या आप गलत चीज़ों में तो नहीं पड़ गए? क्योंकि मादी चीज़ों का आखिर भी ख़त्म होना है, और जो लोग इसको कबूल करते हैं, जिस तरह यहूदा अस्करियोती ने 30 रुपयों के एवज़ खुदा ने यीशु नासरी को, अजीम हस्ती को, पुरवकार हस्ती को गिरफ्तार करवा दिया। और हम देखते हैं कि ये जिस्मानी शख्स, और फिर हम इसका एंड देखते हैं मत्ती रसूल की अंजील 27वां बाब और उसकी हम 3 से 5 आयत देखें तो लिखा है, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने यह देखा कि वह मुजरम ठहराया गया तो पछताया। अजीज़ों, अब वो पछताता है इसलिए कि उसने 30 रुपए तो हासिल कर लिए हैं, मगर उसका सुकून गारत हो गया है, उसकी बरकतें गारत हो गई हैं। और लिखा, सरदार काहनों और बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा, मैंने गुनाह किया। अब उसने इकरार किया, अब उसने तौबा की कि मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। खुदा यीशु मसीह अजीम तरीन हस्ती हैं, इस दुनिया की सबसे मुकद्दस पाक तरीन हस्ती हैं। उनका दर्जा तमाम इंसानों से, तमाम अंबिया से बुलंद है। और हम बात कर रहे हैं जिस्मानी शख्सियतों की, और ये दूसरी जिस्मानी यानी मादी शख्सियत यहूदा अस्करियोती हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। खुदा यीशु मसीह बेकसूर थे और यहूदा अस्करियोती ये जानते थे। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू जान, और वह रुपयों को मकदस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। अजीज़ों, हम देखते हैं कि जो खुदावन से अलग लोग हैं, जो जिस्मानी यानी मादियत को पसंद करते हैं, जो लोग खुदावन से ज़्यादा पैसे को प्यार करते हैं, दिनवी चीज़ों को प्यार करते हैं, उसका अंजाम हम देख लें कि यहूदा अस्करियोती ने अपने आप को फांसी दी। वो ये चाहता था कि खुदा यीशु मसीह, जो ये इस दुनिया की सबसे बड़ी मुकद्दस हस्ती हैं, वो रोमियों को यहाँ से निकाल दें,
वो खुद बादशाह बन जाएं, मगर खुदावन ने कहा मेरी बादशाही इस दुनिया की बादशाही नहीं है, मैं आसमान का बादशाह हूँ, मैं दिलों का बादशाह हूँ, मैं जिंदगियों का बादशाह हूँ, मैं मादियत का बादशाह नहीं। और हम यहाँ देखते हैं यहूदा अस्करियोती का अंजाम कि आखिरकार उसने अपने आप को फांसी दी। आज दुनिया में कितने मसाइल हैं, आज दुनिया में लोग मादे के पीछे भागते हैं, दौलत के पीछे भागते हैं, गुनाहों पर गुनाह हो रहा है, गलत रिश्तों में शादियां हो रही हैं और लोग बदकिरदारी पर बदकिरदारी करते हैं और आखिरकार बहुत सारे खुदकुशी कर रहे हैं, बहुत सारे लानत के ताबे हैं, तारीकी के ताबे हैं, अबलीस के ताबे हैं। अजीज़ो, खुदा का बेटा इसलिए आया कि हमें गुनाहों से, तारीकी से, दलदल से निकाल दे ताकि हम कभी भी खुदकुशी ना करें, हम कभी भी बुराइयों की तरफ ना जाएं, बल्कि खुदावन यीशु पर नजर करम जो उसके हम पर पड़े तो हम खुदावन में बढ़ते जाएं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमने ये सीखा कि जिस्मानी शख्स का अंजाम क्या होता है। अभी हम देखेंगे खुदा के कलाम में से रोमियो 8 बाब 5वीं आयत में लिखा है, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। खुदावन के कलाम में अब हम रूहानी शख्सियात का जायज़ा लेंगे। खुदावन का मोतबर कलाम हमें ये सिखाता और बताता है कि लूका रसूल की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 36वीं और 37वीं आयत को देखें तो इसमें लिखा है, और आशर के कबीला में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक नबिया थी, वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कंवारपन के 7 बरस एक शोहर के साथ गुजारे थे। वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन और रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि आशर के कबीला में से एक बहन है, वो नबिया है, वो नबूवत करती है, और हम देखते हैं कि 7 बरस उसने अपने शोहर के साथ गुजारे हैं। 84 बरस से हैकल में है, वो हैकल से जुदा नहीं होती, यानी खुदावन से अलग नहीं होती। हालेलुया, वो खुदावन से जुदा नहीं होती। वो खुदा के घर में रहकर कलामे पाक ये बयान फरमाता है कि वो रोज़ों में रहती है, वो दुआएं करती रहती है, वो इबादत करती रहती है। इसका मतलब है कि वो 100% खुदावन की ताबेदारी करती है, वो 100% खुदा की वफादार है। उसे एक ही बात अपनी ज़िंदगी में उसने रख ली है, और वो ये है कि उसने खुदावन को अपना आप दे दिया है। वो रोज़ों में है, वो दुआएं करती है और इबादत किया करती थी। जब कोई मुकम्मल रूहानी हो जाता है, खुदा का रूह उसके अंदर कायम हो जाता है, उसके अंदर बस जाता है और उसके अंदर बसेरा कर लेता है और उसके अंदर मोजज़न हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं रूहानी हैं हम, खुदा यीशु अल मसीह को जो कबूल कर लेते हैं, खुदा यीशु उनके गुनाह मुआफ़ कर देते हैं, उसे हमेशा की ज़िंदगी का वारिस ठहरा देते हैं। और वो फिर ये दुआएं नहीं करते कि हम गुनाहगार हैं, वो ये दुआएं नहीं करते कि हम गुनाहगार हैं, हमारे गुनाह बख्शे जाएं। नहीं, वो ये कहते हैं जब कोई खुदा यीशु को कबूल करता है तो वो कहता है कि खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने मेरे गुनाह मुआफ़ किए, मुझे हमेशा की ज़िंदगी का वारिस ठहराया, और अब मैं गुनाहगार नहीं बल्कि मुकद्दस हूँ। खुदावन यीशु के वसीला से ईमानदार हूँ, खुदा यीशु के वसीला से रास्तबाज हूँ। और रास्तबाज के काम कैसे हैं? आशर के कबीला की बहन ने खुदा बाप को ज़िंदगी दी है, और उसका करदार देख लीजिए, उसकी सीरत मुबारक देख लीजिए, उसकी ज़िंदगी देख लीजिए कि वो खुदावन से जुदा नहीं होती। आज बेशुमार लोग खुदावन से जुदा हैं, खुदावन से अलग हैं, वो लानत के ताबे हो रहे हैं, नशे के फरमाबरदार हैं, वो 2-2, 3-3 शादियां करके लानत कमा रहे हैं।
वजह क्या है कि वो खुदावन से अलग हैं, खुदावन में नहीं, जिस तरह आशर के कबीला की देखें कि बिल्कुल जवानी में वो बेवा हुई है, मगर उसने खुदावन को अपना तन मन धन दे दिया है, अपना आप दे दिया है। जब हम खुदावन को अपना आप देंगे, अजीजों, आप खुदावन को अपना आप देकर देखें, आपके गुनाह मुआफ होंगे, बरकतें, तसल्ली, इत्मीनान आप में बढ़ता जाएगा और आप पुरसकून ज़िंदगी बसर करेंगे। ये पहली शख्सियत हमने देखी जो कि रूहानी हो गई, उसका काम रूहानी हो गया, उसका किरदार, उसकी सीरत रूहानी हो गई और उसके अंदर खुदा मौजज़न है, उसके अंदर बरकतें मौजज़न हैं और उसका दिल खुदावन से जुड़ गया है। हालेलुया। खुदावन का कलाम चाहता है कि हम भी रूहानी बने, हम भी रूह से मामूर रहें, खुदा यीशु के खून से भरे रहें, कलाम से भरे रहें और खुदावन से बरकतें पाएं। और फिर हम दूसरी शख्सियत देखते हैं, अमाल 6 बाब उसकी 8 से 15 आयत में लिखा है, स्तिफनस फजल और कुव्वत से भरे हुए थे। मुकद्दस स्तिफनस खुदा यीशु मसीह नासरी से मोहब्बत करते थे और लिखा वो फजल से भरे हुए थे, खुदा का फजल उन पर था और वो कुव्वत यानी पाक रूह से लबरेज से, पाक रूह से भरे हुए थे। और आप फजल और पाक रूह से भरे हुए हैं। क्या आप फजल से भरे हैं? क्या आप पाक रूह से भरे हैं? क्या आप कलाम से भरे हुए हैं या खाली हैं? अगर आप खाली हैं तो आप खतरे में हैं, अगर आप खाली हैं तो आप नुकसान में हैं, अगर आप खाली हैं तो आप बेबरकती में ज़िंदगी गुजार। इसलिए खुदावंद के कलाम को जब हम देखें, अमाल की किताब 6 बाब 8 से उसकी जब हम खुदा के कलाम में से अमाल 6 8 से 15 याद देखें तो लिखा है, और स्तिफनस फजल और कुव्वत से भरा हुआ लोगों में बड़े अजीब काम और निशान जाहिर किया करता था। मुकद्दस स्तिफनस खुदावंद की खिदमत करते हैं और बड़े बड़े मौजज़ात उनकी ज़िंदगी में हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगी से जाहिर हो रहे हैं, बड़े बड़े निशान जाहिर हो रहे हैं। खुदा उनको इस्तेमाल कर रहा है। और लिखा, और उस इबादत खाना से जो लिबर्तीनियों का कहलाता है और क्रीनियों और अस्कंदरियों और उनमें से जो किलिकिया और यासिया के थे, बाज़ लोग उठकर स्तिफनस से बहस करने लगे, मगर वो उस दनाई और रूह का जिससे वो कलाम करता मुकाबला ना कर सके। जब खुदावन की दनाई आ जाती है, जब पाक रूह आ जाता है, तो फिर इब्लीस, उसके लोग जो हैं वो आपका मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? कि खुदा ने आपको मुनफरिद कर दिया है, खुदा ने आपको अलग कर दिया है और खुदा ने आपको अपनी दनाई जो दिनवी नहीं और अपना रूह दिया है, अपना कलाम दिया है जो हज़ारों बरकतें हमारी ज़िंदगी में लाता है। क्या आप खुदावन से दनाई मांगते हैं? आप रूह मांगते हैं? आप कलाम हासिल करते हैं? अगर ऐसा है तो अजीज़ों, आप मुबारक हैं। आप खुदा से मांगेंगे तो खुदा आपको अता कर देंगे, क्योंकि खुदावन ने फरमाया मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और फिर लिखा, उस पर उन्होंने बाज़ आदमियों को सिखा कर कहलवा दिया कि हमने इसको मूसा और खुदा के बरखिलाफ कुफर की बातें करते सुना है। अवाम को खिलाफ किया, बुजुर्गों को भी मुखालिफ किया और उबारा दूसरे लोगों को। और 15वीं आयत में देखें, और उन सब ने जो अदालत में बैठे थे उस पर गौर से नज़र की तो देखा कि उसका चेहरा फरिश्ता का। उन्होंने मुखालफत की, वो खिलाफ हो गए, मगर मुकद्दस स्तिफनस को परवाह नहीं, ना इब्लीस की ना लोगों की। और यहाँ खुदा ने उनका चेहरा फरिश्ते जैसा कर दिया। क्या आपका चेहरा फरिश्ते जैसा है? तब होगा जब खुदा का पाक रूह आप में आएगा, जब खुदा यीशु मसीह नासरी का खून आपकी ज़िंदगी में होगा, आपका चेहरा मुबारक भी रूह से जब भर जाएगा, आप भी फरिश्ते के चेहरे जैसा हो जाएंगे।
क्योंकि ये खुदावन का फरमान है। और फिर हम पाक कलाम में से देखते हैं अमाल 7 बाब उसकी 54 से 6 आयत, और हम यहाँ पर देखते हैं खुदावन के कलाम में से 55 आयत में, मगर उसने रुल्कुल से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नज़र की और खुदा का जलाल और यस्सु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा। यहाँ हम देखते हैं कि मुकद्दस स्टीफनस ने मुखालफत हुई, मुश्किलात आईं, रुकावटें आईं, मुखालफतें, सब कुछ हुआ, और लोग उसका कलाम सुनकर जल गए, उसकी बातें सुनकर उसके खिलाफ हुए, मगर खुदा का जलाल उस पर ठहर गया। हालेलुया। और यस्सु को खुदा की दाहिनी तरफ देखा, उसने आसमान को खुला देखा, बाप को तख्त पर और बेटे को वहाँ पर उसने दाहिनी तरफ खड़ा देखा। हालेलुया। ये खुदा की बरकतें हैं, ये खुदा का जलाल है जो हमें भी जब हम रूह में होते हैं तो नज़र आता है। उन्होंने मुखालफत की, उन्होंने उसको संसार किया, उसको तंग किया, परेशान किया, और उसने कहा कि खुदावंद यस्सु मेरी रूह को कबूल कर। उसे कोई डर या खौफ नहीं, वो खुदा के लिए शहीद हो गया और उसने खुदावंद के नाम को इज्जत दी। खुदावंद को अगर आप भी दाहिनी तरफ बैठना देखना चाहते हैं कि खुदा यस्सु बाप की दाहिनी तरफ बैठे हैं, तो आपके लिए लाजम है कि आप खुदा यस्सु को ज़िंदगी दें, आप पाक रूह से भर जाएं, जलाल से भर जाएं। मुकद्दस स्टीफनस पाक रूह से भरे हुए थे और खुदावंद को उन्होंने इज्जत दी, जला दिया। खुदा ने उन्हें कसरत से इस्तेमाल किया, बरकत देकर इस्तेमाल किया। और हम देखें कि उन लोगों को सच्चाई हज़म नहीं हुई। आज हम भी खुदा यस्सु को कबूल करें ताकि हमारे गुनाह बख्शे जाएं, हमारी बद किरदारियाँ मुआफ़ हों, हम निजात पाएँ और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहरें। इसलिए हासिल कलाम ये है, अगर आप जिस्मानी यानी मादी चीज़ों के पीछे भागेंगे, जिस्मानी ख्यालात में रहेंगे, तो जिस तरह हमने देखा कि काइन का अंजाम हुआ, इसी तरह आपने देखा यहूदा इस्करियोती का अंजाम, उसने अपने आप को फांसी दी, खुदकशी की, और काइन का भी अंजाम अच्छा ना हुआ। आए हम सब रूहानी बन जाएं, आए हम रूहुल कुद्स से मामूर हो जाएं, आए हम खुदा यस्सु के बरकतों में शामिल हो जाएं। कहें क्या है, खुदावंद मैं अपना आप तुझे देता हूँ। मैंने दुनिया में देख लिया कि दुनिया में कुछ भी नहीं, दुनिया की लज्जतें बर्बादी हैं, दुनिया की लज्जतें लानत हैं, दुनिया की लज्जतें नुकसान देती हैं, पर खुदा यस्सु आशर के कबीला की बहन जो रूहानी थी, दुआओं में रोज़ों में रहती थी, मैं भी खुदावंद तेरे नक्शे कदम पर चलूँगा, मैं भी खुदा मुकद्दस स्टीफनस की तरह तुझसे पाक रूह लूँगा, तुझसे पाकीज़गी लूँगा और तेरे नाम को जलाल दूँगा। आए हम खुदावंद के कलाम को हमने सीख लिया है, अपनी ज़िंदगियों में बिठाएं, दिलों में जगह दें और दुआ करें। खुदा बाप तेरे शुक्रगुज़ार हैं, आपने हमें सिखाया कि खुदावंद हम आपके फ़ज़ल से, आपके पाक रूह से भरे रहें, खुदा आपके तोफ़ैल रूहानी बन जाएं, क्योंकि आप हमें बरकतें देने के लिए आए, निजात देने के लिए आए, शिफा देने के लिए आए। खुदा यीशु हम सबको बड़ी बरकत से नवाज, और जितने बहन भाई ये कलाम सुने उन पर तेरी कसरत की बरकतें आ जाएं और वो रूहानी बन जाएं और तेरी ताबेदारी करके तेरे लिए, कलीसिया के लिए, दुनिया के लिए बरकत का बायस ठहरें। ये कलाम सब में जड़ पकड़े ताकि खुदावन सब तेरे नाम को जलाल दें। ग्रेस नेटवर्क के पास्टर्स को बड़ी बरकत से नवाज और इसको तरक्की और फजीलत अता फरमा। हम सब को मसीही तालीम में कायम रख, मसीह खुदा के वसीला से चाहते और मांगते हैं, आमीन।